डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधा लिए चलते हैं आपको। Subject Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity, and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct Phase 2/Phase 3 clinical trial on 1,600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on ViroCell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species, such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using DNA platform. The firm initiated Phase 1/Phase 2 clinical trial in India in more than
1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over. We can give you the separately. अभी तक ready नहीं है हम पे statement जो है हिंदी में. Please use it and we will provide you Hindi statement also. Thank you. तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जिसका इंतजार आप सबको था। डीसीजीआई ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, यानी फाइनल मंजूरी अब वैक्सीन को मिल चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर, उम्मीद के मुताबिक यही खुशखबरी जिसका इंतजार पूरे देश को था। डीसीजीआई ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को लेकर जिक्र किया गया, बताया गया कैसे उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं, तो कैसे अप्रूवल मिला कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को। और ये एक बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। अब लगेगा कोरोना वायरस को मात देने वाला टीका, यानी अब कोरोना वायरस पर ये विजय है। जो जंग पिछले 1 साल से, पिछले 8 महीनों से देश लड़ रहा है, उसमें जीत का समय आ गया है। दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों को अप्रूवल मिल चुका है डीसीजीआई की तरफ से। ये बहुत बड़ी खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर के लिए, लगभग 4 से 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, लेकिन इतनी बड़ी खबर, राहत देने वाली खबर दी गई है। इसकी सारी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, या यूं कहें कि जो बीता साल है उसे छोड़कर अब नए साल की ये सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार पूरे साल देश के लोगों ने किया कि आखिर वैक्सीन कब बनेगी। और ये करिश्मा कर दिखाया हिंदुस्तान ने। और ये सबसे, ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, 8 महीने में कर दिखाया, वैक्सीन अब फाइनली लोगों तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बता दें देशवासियों के लिए सबसे बड़ी खबर है और शुभ खबर है नए साल में कि फाइनली डीसीजीआई ने, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है दोनों वैक्सीन को, कोवैक्सीन और कोविन को, जो एक सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाई गई है ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, और दूसरी जो वैक्सीन है वो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर, एनआईबी के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर रिसर्च की है। तो दोनों वैक्सीनों को डीसीजीआई की तरफ से अनुमति मिल गई है, सीधे शब्दों में कहें, और अब जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश में शुरू हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चलने जा रहा है। ब्रह्म प्रकाश, एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं, एक बार फिर से सुनाते हैं इस खुशखबरी के बारे में। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India.
तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर, जिस तरह से जानकारी दी गई दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, स्वदेशी वैक्सीन है। बताया गया कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हुए थे उसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं आया और चरणबद्ध तरीके से जब ये ट्रायल किए गए तो इसके सकारात्मक परिणाम निकल कर आए और अब ये हम कह सकते हैं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे अब वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो इमरजेंसी यूज के लिए अब मंजूरी मिल गई है कोवैक्सीन कोविशील्ड को। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है। ब्रह्मप्रकाश दुबे लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मप्रकाश, इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर मंजूरी दी गई और कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात भी कही जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी इसलिए है कि देश में अभी भी महामारी का दौर है, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है और ऐसी महामारी की स्थिति में देश में वैक्सीनेशन जल्दी शुरू किया जाना है, लिहाजा कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये जो है वैक्सीनेशन शुरू होगा। जैसा मैंने आपको बता दूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री देश भर के सारे जिलों को एक लेटर भेज चुकी है जिसमें कहा गया है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो, जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाए उसकी मॉनिटरिंग की जाए, उसको कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो कहीं बीमार तो नहीं पड़ रहा है और उस पर निगरानी रखी जाए। ये पहले लेटर भेज चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय, पहले लेटर भेज चुका है देश के सभी जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को कि इस लिहाज से तैयार रहिए और मॉनिटरिंग के लिए भी तैयार रहिए, पूरी तैयारी रखिए, क्योंकि अभी भी पेंडेमिक है, अभी भी महामारी का दौर है, लेकिन देश की आबादी को बचाना है इस महामारी से, लिहाजा इस महामारी में जल्दी से वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है, लिहाजा इमरजेंसी वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है और इमरजेंसी यूज के लिए इसको अनुमति दी गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इसमें कई नियामक बॉडीज के रूल होते हैं, लेकिन महामारी का दौर है तो उन रूल्स को भी पास आउट करके इसको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जल्दी अंजाम देना है। लेकिन तमाम जो क्लिनिकल ट्रायल में जो सावधानियां बरती जाती हैं उसी तरह की सावधानियां अभी भी बरती जाएंगी। जिसको वैक्सीनेशन दिया जाएगा उसकी निगरानी की जाएगी, उसको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सारा परखा जाएगा, पूरे देश भर में परखा जाएगा। देखिए पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं जो देश भर में इलाज कर रहे हैं हमारे कोरोना मरीजों का, उनको सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद जो 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिनकी पहचान की गई है, जिसमें पुलिस हैं, सेना के जवान हैं, सफाई कर्मी हैं, जो दिन रात काम करते हैं सार्वजनिक जगहों पर, तो उनको ऐसे 2 करोड़ लोगों की पहचान की गई है, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो उनको भी पहले फेज में लगाया जाएगा। इसके बाद बारी आएगी 27 करोड़ लोगों की, जिसमें सीनियर सिटीजन है, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। ब्रह्मप्रकाश, एक बार फिर से सुनवाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कहा गया और फिर उसे समझेंगे, उसे डिकोड करेंगे। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. तो 3 मेहमान मेरे साथ हैं इस वक्त। डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, सीनियर कैंसर सर्जन, डॉक्टर कौशल कांत वरिष्ठ चिकित्सक हैं और प्रोफेसर एनके गांगुली पूर्व जीडी ICMR। प्रोफेसर गांगुली, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। सर, मैं चाहती हूं अभी जो हमने बाइट सुनवाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसे आप डिकोड कर दें और हमारे दर्शक सरलता से समझ पाएं। थैंक यू। एक्चुअली तीनों जो परमिशंस हैं वो 3 अलग अलग परमिशंस हैं। ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन थी उसका 23,000 लोगों का जो एफिकेसी ट्रायल है, सेफ्टी इम्यूनोजेनिसिटी एफिकेसी ट्रायल, वो डाटा भी दिया गया था और इनके 1600 लोगों का ब्रिजिंग स्टडी का डाटा दिया गया था सीरम इंस्टीट्यूट का इंडिया में। और वो डाटा उस डाटा के अनुसार इन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसका दिया है, जैसे बाकी दुनिया के लोगों को दिया गया है। तो ये वैक्सीन इमीडिएटली व्यवहार की जा सकती है वाइडली, क्योंकि अभी इमरजेंसी सिचुएशन है। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसमें अभी एफिकेसी डाटा नहीं दिखाया गया है, उसमें सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी डाटा दिखाया गया है और इसमें रेस्ट्रिक्शंस कुछ ज़्यादा हैं। इसमें तभी यूज़ किया जा सकता है कि अगर कोई ज़्यादा आउटब्रेक है या बढ़े
और अब जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उनमें इसका व्यवहार हो सकता है, बट इसको क्लिनिकल ट्रायल मोड में करना पड़ेगा। सीरम इंस्टीट्यूट का जो है वो उसको व्यवहार किया जा सकता है सीधे, बट इसको क्लिनिकल ट्रायल मोड में कुछ सिचुएशन में भारत सरकार के जजमेंट के अनुसार इसको यूज़ किया जा सकेगा। जहाँ तक कि कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन है, वो वैक्सीन अभी फेज़ 3 में एंटर कर रही है। उसके फेज़ 2 के डाटा से जो रेगुलेटर्स हैं वो संतुष्ट है। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। तो इस वक्त अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो इमीडिएटली अवेलेबल वैक्सीन होगी जिसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे वो है सीरम इंस्टीट्यूट की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, क्योंकि उन्होंने ये वैक्सीन बना भी ली हुई है। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी परमिशन मिलने से बहुत पहले से, और इनके मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल बना हुआ है। तो और जो भारत सरकार ने जो कल जो किया था, जो ड्राई रन किया था, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वो उसी स्टैंडर्ड का है जैसे कि दुनिया में किया जा रहा है, तो इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री ड्राई रन। हाउएवर जो मेन चीज़ इसमें है कि लोगों को वैक्सीन तक लाना पड़ेगा। पानी तो है, बट घोड़े को पानी तक लाना बड़ा ज़रूरी है जिससे कि लोगों के आर्म में ये वैक्सीन जा सके। तो इसलिए कम्युनिकेशन ड्राई रन में वो प्रावधान भी है, कम्युनिकेशन वगैरह का है। लोगों में वैक्सीन का डर घटाना पड़ेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी से लोगों को जानकारी देते रहना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपने को बचाना नहीं, अपने परिवार वालों को बचाना और देश के दूसरे लोगों को बचाना। सर, अभी आप बता रहे थे कि अगर हम कोवैक्सीन की बात करते हैं तो इसको हमें भी क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। कोविशील्ड पूरी तरह से एक संपन्न वैक्सीन के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। सर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो मैं समझ पाई उसमें कहा गया कि अभी कोवैक्सीन के जितने भी चरण के ट्रायल किए गए, मेडिकल ट्रायल किए गए, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था, उनमें सफलता मिलती गई, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक पूर्ण रूप से वैक्सीन है। तो फिर जिन रेस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही थी सर, उस पर एक बार और प्रभाव डालिए आप। नहीं, नॉर्मली क्या है कि जो वैक्सीन गाइडलाइंस थी, पहले 50% की एफिकेसी दिखाई गई थी कि एफिकेसी के बाद सिर्फ सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी नहीं, एफिकेसी भी डाटा देखा जाता है। तो 50% का गाइडलाइन में प्रावधान था कि इससे अगर यहाँ तक पहुँचे तो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब जो मानदंड है वो 70% और 70% के ऊपर का बन गया है। तो कोई भी वैक्सीन आएगी उसकी एफिकेसी 70% या उसके ऊपर की होनी चाहिए। तो अभी इनकी एफिकेसी डाटा है नहीं। इन्होंने नवंबर के करीब बीच में या लास्ट वीक में शुरू किया था। उसके बाद 28 दिन के बाद सेकेंड वैक्सीन लगनी थी। उसके 10 दिन बाद पहला सैंपल लेना था। तो एफिकेसी के लिए 2 महीने और लगते हैं पूरे देखने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.